Hello students. Standard 9, subject Social Science, chapter number 5, Movement towards Independence, session 5. Topics of the session: Achieving Independence and Partition of India, Mountbatten Plan of 1947 and Partition of India, Indian Independence Act of July 1947, India becoming independent and the immediate problem of independent India. Now, achieving independence and partition of India. Students, till 4 session we have discussed about the different movements undertaken under the leadership of Mahatma Gandhi ji, the contribution of Subhash Chandra Bose and Indian National Army in order to achieve the freedom as early as possible, and the final movement by Mahatma Gandhi ji, that was a Quit India movement, forced the Britishers to leave India as early as possible. So now in this particular session we will discuss about how we got the independence on 15th August 1947. So let's start. The commander of Indian National Army were arrested as a prisoners of the war and were accused of treason and put on trial. कि इंडियन नेशनल आर्मी जो सुभाष चंद्र बोस जी के डेथ के बाद थोड़ी वीक हो गई, धीरे 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 उनके सभी सोल्जर्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया और सभी को जेल में डाला गया और उन पे केस चला. The British government inflicted them with punishment. There were protests against them in the entire country. When the British government disclosed punishment to them, जब उन सोल्जर्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन पर केस चलाकर देशद्रोही का आरोप लगाकर जब उन्हें उम्र कैद की या फांसी की सजा सुनाई, तब पूरे देश में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट आंदोलन और मूवमेंट स्टार्ट हुए. दिस इवेंट एंड विद द Naval Mutiny of Bombay in 1946, the British realized their rule in India will no longer be tenable. जब यह प्रोटेस्ट हुआ इंडियन नेशनल आर्मी के सोल्जर्स को पनिशमेंट देने के बाद, और साथ ही साथ नवल म्यूटिनी ऑफ बॉम्बे का जो स्ट्राइक हुआ, उसके थ्रू ब्रिटिशर्स को ये थोड़ा लग गया कि अब भारत में हमारा ज़्यादा टाइम होगा नहीं. Vallabhbhai Desai एंड जवाहरलाल नेहरू प्लीडेड देयर केस. इंडियन नेशनल आर्मी के जो सोल्जर्स पकड़े गए थे उनका केस जवाहरलाल नेहरू जी ने और वल्लभभाई देसाई ने हैंडल किया. सो बोइंग टू पॉपुलिस्ट ओपिनियन द गवर्नमेंट हैड टू विड्रॉ द पनिशमेंट. जब लोगों का बड़े पैमाने पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने अपोज चला तो उन्हें सोल्जर्स को जो पनिशमेंट सीवियर पनिशमेंट्स दिए गए थे वो पनिशमेंट उनको वापस खींचने पड़े. On February 20, 1947, Attlee, the Prime Minister of Britain, announced that the British government shall give all the powers of the government of India as per the cabinet mission formula and shall quit India by June 1948. Finally, वो सुनहरा दिन जिसकी हम राह देख रहे थे सालों से, वो डे आया. On February 20, 1947, इंग्लैंड या तो ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने डिस्क्लोज किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया से जल्द निकल जाए. वहाँ का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और गवर्नमेंट इंडिया के लोगों के हाथ में देकर जून 1948 के पहले भारत देश छोड़ दे. Thus, in a changed situation, Mountbatten was appointed as a viceroy in place of Lord Wavell. तुरंत इमीडिएटली इंडिया के इंडिपेंडेंस प्रोसेस को क्विकली एंड करने के लिए लॉर्ड वेवेल, जो पुराने वाइस रॉयस थे, उनको चेंज करके माउंटबैटन को अपॉइंट किया गया. When Mountbatten took the charge of his post, communal riot had started in India and the condition of India had become pathetic. When Mountbatten became the viceroy, at that time in India,
the riot started between Hindus and Muslim, and the situation became pathetic, means worst. In July 1946, the Congress secured 201 seats out of 210 and Muslim League 73 seats out of 78 from the provinces of India for the prior formation of the Constituent Assembly. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए जो बात हुई थी उसमें से 201 सीट्स नेशनल कांग्रेस पार्टी को गई और मुस्लिम लीग को 73 सीट्स मिले. The league pressurized the government for Pakistan on 16th August 1946, but मुस्लिम लीग ने 16th अगस्त 1946 के दिन ब्रिटिश गवर्नमेंट पे और माउंटबेटन पे एक इंडिपेंडेंट पाकिस्तान देने के लिए बहुत प्रेशराइज किया जहां पे सिर्फ मुस्लिम लोग ही रहेंगे. दैट मीन्स दे डिमांडेड देयर ओन सेपरेट मुस्लिम कंट्री. So the terrible communal riots and the tumult spread all over India. जब अपने यूनाइटेड हिंदुस्तान से एक मुस्लिम रीजन सेपरेटली डिवाइड करने के लिए बात की गई तब पूरे भारत में हिंदू और मुस्लिम के झगड़े बड़े पैमाने पे भड़क उठे. Looking at the situation in India, Sardar Patel, Jawaharlal Nehru and other Congress leaders felt that there was no other alternative except accepting the demand of Muslim League for Pakistan, and because of Muslim League and Muhammad Jinnah incited for separate Pakistan. धीरे धीरे ये कम्युनल दंगे बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ गए जिसकी वजह से इनोसेंट लोगों का बड़े पैमाने पे किलिंग होने लगा. घर लूटे जाने लगे, दुकानें मार्केट जलाए जाने लगे, पब्लिक प्रॉपर्टी को बड़े पैमाने पे डैमेज हो रहा था, लोग अपनी लाइफ गंवा रहे थे. इस वर्स्ट सिचुएशन को ध्यान में लेते हुए नेशनल कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता जैसे कि सरदार पटेल जी, जवाहरलाल नेहरू जी और दूसरे बहुत महानुभावों को ये लगा कि अगर इस सिचुएशन से बचना है तो हमें ना चाहते हुए भी मुस्लिम लीग की डिमांड को एक्सेप्ट करते हुए, मोहम्मद अली जिन्ना की डिमांड को एक्सेप्ट करते हुए पाकिस्तान को इंडिया से सेपरेट कर देना चाहिए. The Muslim League boycotted the first cabinet meeting on 9 December 1946 of Constituent Assembly. Constituent Assembly बनाने के लिए जो मीटिंग होने वाली थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसके बारे में स्टूडेंट्स हम चैप्टर 8 में पढ़ चुके हैं, उस मीटिंग का उन्होंने बॉयकॉट किया. They did not attended that meeting. The Muslim League executive held on January 31, 1947 decided to boycott the cabinet meeting and gave a rapid and extensive program for the demand of Pakistan. 13 जनवरी 1947 को उन्होंने कैबिनेट मीटिंग्स जो होने वाली थी उसका टोटल बॉयकॉट किया और उन्होंने डिमांड रखी कि जल्द से जल्द हिंदुस्तान से पाकिस्तान को सेपरेट करके एक इंडिपेंडेंट कंट्री मुस्लिम लीग को हैंडओवर कर दी जाए. Mountbatten convinced the Nehru and Sardar Patel, who understood the matter, that having a well-organized central government, having administrative unit under the center, shall be more peaceful and progressive instead of weak central government consisting of many autonomous and opposite constituents. माउंटबेटन, नेहरू जी और सरदार पटेल ने इस बात को समझ लिया कि एक यूनाइटेड नेशन बनाने के अगर हम जाएंगे तो साथ में ऐसे दो कंट्री और ऐसी दो कम्युनिटी रहेगी जो एक दूसरे के अपोज में है, एक दूसरे का सुनने को रेडी नहीं है, कॉन्स्टेंटली उनके बीच में झगड़े होते रहेंगे और ऐसे एक वीक गवर्नमेंट बनाने से अच्छा है कि दोनों को सेपरेट कर दिया जाए और दोनों अपने अपने तरीके से एक वेल एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट और कंट्री पीसफुली चला सके. नेशनल लीडर्स फाउंड दिस आर्ग्यूमेंट एक्सेप्टेबल. बहुत से जो नेशनल कांग्रेस पार्टी के लीडर्स थे उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि बेटर है एक साथ रहकर झगड़े से रहने से बेटर है कि हम इंडिपेंडेंट हो जाए, सेपरेट हो जाए और पीसफुली रहे. Sardar Patel and Nehru discussed this matter with the Gandhiji, who also helplessly accepted the arrangements of partitions with heavy hearts. गांधी जी को जब ये बात बताई गई, नेहरू जी और सरदार पटेल ने उनके सामने ये पार्टीशन का जब प्रस्ताव रखा तो उन्हें भी बहुत दुख हुआ. बट जनता की भलाई के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए,
लोग पीसफुली रह पाए, आगे बढ़ पाए, देश सुरक्षित रहे, उसके लिए गांधी जी ने भी पार्टीशन को एक्सेप्ट कर लिया. Now, what was Mountbatten Plan of 1947 and how it resulted in the partition of India into two independent nations, Bharat and Pakistan? On March 24, 1947, Mountbatten presented the scheme of partition. According to him, there was no alternative other than the partition of India into two parts. National and prolific leaders like Sardar Patel understood the matter. पूरा देश और नेशनल कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता सरदार पटेल जी, नेहरू जी, गांधी जी, मौलाना आज़ाद, इन सभी को भी इस बात का अहम हो गया कि यस, नाउ द पार्टीशन इज द ओनली सॉल्यूशन टू एंड द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड द रियॉट्स बिटवीन Hindus and Muslim. After many discussion and pondering, finally on June 3rd, 1947, Mountbatten decided to plan the partition of India. This plan is known as the Mountbatten Plan. Here in an image, students, you can see the person, है ना? He is the Mountbatten. Here is the head of the Muslim League Party, Muhammad Ali Jinnah, Sardar Pandit Jawaharlal Nehru ji, Dr. Ambedkar ji, right? These were the people who were handling this partition work. The Congress leader and the Muslim League accepted the plan of partitions. When the Mountbatten plan started getting implemented, the people of East Bengal, Sylhet province of Assam decided to join East Pakistan, and West Bengal and East Bengal were affiliated with the India as per the decision of their assembly. West Punjab joined with the Pakistan. कि जब माउंटबेटन प्लान स्टार्ट हुआ तब बंगाल के लोगों ने भी ईस्ट पाकिस्तान के साथ जुड़ने के लिए अपना ओपिनियन प्रेजेंट किया. इस तरह से बंगाल के दो पार्टीशन हुए, वेस्ट बंगाल एंड ईस्ट बंगाल, जो आज के बांग्लादेश में है. एंड द पंजाब प्रोविंसेस वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, जिसका ईस्ट पंजाब आज इंडिया का हिस्सा है और वेस्ट पंजाब आज पाकिस्तान में है. It was decided to affiliate northwest provinces Sindh, Balochistan with the Pakistan also. Now, Indian Independence Act, July 1947. The British Parliament passed the Indian Independence Act according to Mountbatten Plan. कि माउंटबेटन प्लान के थ्रू इंडिया और पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में सेपरेट करने का प्लान एक्सेप्ट कर लिया गया. कौन कौन से प्रोविंसेस पाकिस्तान में जाएंगे और कौन से प्रोविंसेस के फ्यू पार्ट्स इंडिया के साथ ज्वाइन हो गए, ये पूरा डिस्कस हो गया. और अकॉर्डिंग टू दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इन जुलाई 1947. According to these, India's first Governor General Mountbatten and Janab Jinnah, who was the Governor of General of Pakistan, इंडिपेंडेंट इंडिया एक्ट के थ्रू इंडिया के पहले गवर्नर बने. इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले गवर्नर बने माउंटबेटन और इंडिपेंडेंट पाकिस्तान के पहले गवर्नर बने मोहम्मद अली जिन्ना. बाय दिस एक्ट इंडियाज डिपेंडेंस ऑन द ब्रिटिश रूल केम टू एन एंड. इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बनते ही भारत का ब्रिटिश गवर्नमेंट पे जो डिपेंडेंस था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हिसाब से चलता था, उसका एंड हो गया. देयरफॉर गांधी जी कंसिडर्ड दिस एक्ट, मतलब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया, महात्मा गांधी जी ने इस बात को कहा कि द ओनली वन बेस्ट एंड बेनिफिशियल एक्ट बाय गिवन ब्रिटिशर्स टू इंडिया. कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने मोर देन 200 ईयर के रूल में जो उन्होंने इंडिया में किया, उस टाइम में उन्होंने सिर्फ एक ऐसा एक्ट जो इंडियंस के बेनिफिट के लिए बनाया हो, वो था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट. द लास्ट वाइसरॉय ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड द फंक्शन इन न्यू दिल्ली एट द मिडनाइट ऑफ August 14th, and the Union Jack of England was brought down from the pole and the Indian national flag tricolor was hoisted
on the 15th August 1947. यूनियन जैक ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का जो झंडा था उसे उतारा गया और उसकी जगह पे हमारे देश की आन बान शान उस तिरंगे को लहराया गया. The document attributing the independence to India was handed over by the Mountbatten to C. Rajgopalachari, the first Governor General of independent India. वाइसरॉय ने अपना पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, मैनेजमेंट पावर लेफ्ट करते हुए वो अपने इंडिपेंडेंट इंडिया के, अपने आज़ाद भारत के पहले गवर्नर सी राजगोपालाचारी जी को हैंड ओवर कर दिया. इन एग्जाम यू मे गेट द क्वेश्चन, who was the Governor General of independent India? So the answer will be C. Rajgopalachari. Entire atmosphere was full of excitement. Entire process of transfer of power was completed, and finally the golden date in the history of India, that is August 15, 1947, was an excellent dawn for India. पूरा एटमॉस्फेयर जोश, उत्साह, खुशी से भर गया. पूरे देश के लोग आज एक अलग ही प्रकार की खुशी से जी रहे थे. हैंड ओवर का जो प्रोसेस था पूरा देश को आज़ाद करके ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ से इंडियंस के हाथ में सौंपने का जो पूरा काम था वो खत्म हुआ और फाइनली 15 अगस्त 1947 इंडियन हिस्ट्री के साथ और फ्यूचर के साथ एक गोल्डन लेटर्स में हमेशा के लिए जुड़ गया. All celebrated the first Independence Festival very pleasantly and cheerfully in the entire country. लाखों लोगों के सेक्रीफाइस, बलिदान और आहुति के थ्रू फाइनली हम उस गोल्डन डे को अचीव कर पाए जो एक आज़ाद भारत के रूप में एस्टैब्लिश्ड हुआ. Everywhere people hung torrents, a good omen, on door, sweets were distributed in the schools. Many people who had taken woe felt relieved on its fulfillment, but the Gandhiji was at the shock due to the partition of India. एक तरफ पूरा देश उत्साह में डूबा हुआ था, सेलिब्रेशंस कर रहा था, लोगों ने मिठाइयाँ बांटी, घरों को सजाया गया. कुछ लोग जिन्होंने आज़ाद भारत को देखने के लिए जो ओथ लिए थे, जो कस्में खाई थी, वो उन्होंने पूरी होते हुए देखी. बट एक और गांधी जी थोड़े दुखी थे कि इंडिया का पार्टीशन हुआ और देश को बांटा गया. एंड देयरफॉर ही हैड डीपली प्लग्ड इनटू द ग्रीफ एंड ड्रिफ्टेड इनटू मेडिटेशन. इसलिए वो थोड़े दुख और शौक के माहौल में डूब गए. इंडिपेंडेंट इंडिया एंड द इमीडिएट प्रॉब्लम्स. अब 15 अगस्त 1947 को अपना भारत आज़ाद हो चुका था. ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया से लिव आउट कर चुकी थी. अब पूरे देश को चलाने की, उसे फिर से संभालने की, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे हमारा जो भी एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, फाइनेंशियल सफरिंग हुआ है, देश में जो गरीबी बेकारी का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन गवर्नमेंट पे आ गई. सो आज़ाद भारत और साथ ही साथ जो हमारे इमीडिएट प्रॉब्लम्स थे वो. India and Pakistan, two separate independent nations, came into existence as a result of Mountbatten Plan and Indian Independence Act of 1947. Mountbatten Plan और Indian Independence Act of 1947 के तहत दो इंडिपेंडेंट देश एग्जिस्टेंस में आए and that was India and Pakistan. The resolution to the following problem had to be found out. अब आज़ाद भारत के सामने कुछ परेशानियां थी जिसका सॉल्यूशन ढूंढना बहुत ज़रूरी था. एंड दोज प्रॉब्लम्स वर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिलिट्री फोर्स, डिस्प्यूट ओवर असेट्स एंड प्रॉपर्टी, डेब्ट्स एंड क्रेडिट्स, प्रॉब्लम एंड सेटलमेंट ऑफ द रेफ्यूजीज, पब्लिक सर्विस एंड अरेंजमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, demarcation of international boundaries on eastern and western sides of India to be fixed. First, reorganization of military force. पार्टीशन की वजह से कुछ मिलिट्री फोर्स पाकिस्तान को दी गई, कुछ इंडिया में रही, तो उसको अभी प्रॉपरली फिर से अरेंज करना था. पार्टीशन में कितनी प्रॉपर्टी पाकिस्तान को दी जाए, कितनी इंडिया में रखी जाए, उसको सॉल्व करना था. डेब्ट एंड क्रेडिट्स, कितने लोन्स एंड एडवांसेस जो हम पे थे उसका पार्टीशंस. पाकिस्तान वाले इलाके से जो लोग भारत में आए थे पार्टीशन के बाद,
उनको कहाँ रखना, उनका कहाँ सेटलमेंट करना, उन्हें कहाँ पे घर, एग्रीकल्चरल वर्क या दूसरे वर्क दे के सेटल करना, वो प्रॉब्लम्स थी। पब्लिक सर्विसेज और सिविल सर्विसेज में जो सर्वेंट्स थे, डिफरेंट जुडिशरी सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एग्जीक्यूटिव सिस्टम, उसका जो स्टाफ कम हुआ या पार्टीशन की वजह से बांटा गया, उसको फिल आउट करना। और वेस्ट साइड के पाकिस्तान और इस साइड का पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान या तो इंडिया और बांग्लादेश से रिलेटेड जो बॉर्डर थी, उस बॉर्डर को फिक्स करना, प्रोटेक्ट करना और सेफगार्ड करने का अरेंजमेंट्स करना, ये सब मेजर प्रॉब्लम्स थे जो आज़ादी के बाद हमारे सामने खड़े थे। In exam, you may get the question for 2 marks that which were the immediate problem that independent India faced. So you have to write all these 6 points. A 5-member committee consisting of 2 representatives each from India and Pakistan were formed under the chairmanship of Mountbatten. The committee appointed the different commission consisting of experts to relevant the subject and to solve the problems. दोनों कंट्री के दो लीडर्स और माउंटबेटन को जोड़कर एक 5 मेंबर की कमेटी बनाई गई, जिसमें कुछ एक्सपर्ट्स वगैरह थे। और हमने जो 6 डिफरेंट प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया, उसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द ढूंढने के लिए ये कमेटी बनाई गई थी। इन केस ऑफ एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, बोथ द नेशंस एडमिटेड टू एक्सेप्ट द फाइनल डिसीजन गिवन बाय द आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर मीन्स मिडलमैन, मीन्स द माउंटबेटन, consisting of 1 representative of India and 1 of Pakistan under the chairmanship of former Chief Justice of India। कि दोनों कंट्री के बीच में अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड डिस्प्यूट हो या दोनों अग्री ना करे, तो एक आर्बिट्रेटर कमेटी बनाई गई थी, जिसमें एक इंडियन रिप्रेजेंटेटिव, एक पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो अपॉइंट किए गए थे। उन 3 लोगों का जो डिसीजन होगा वो फाइनली फिर इंडिया और पाकिस्तान को एक्सेप्ट करना था। मिलिट्री कमांडेंट जनरल ऑफ इंडिया कंप्लीटेड द पार्टीशन ऑफ आर्मी, मिलिट्री वेपन्स एटसेट्रा। कि जो कमांडेंट इन चीफ थे, उन्होंने आर्मी का पार्टीशंस किया, मिलिट्री के जो वेपन्स वगैरह थे वो दोनों कंट्री के बीच में बांटे गए। द ब्रिटिश आर्मी लेफ्ट इंडिया ऑन February 28, 1948। फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट की टोटल आर्मी इंडिया से February 28, 1948 को लीव आउट करके चली गई। ऑल ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री, जुडिशरी वर गिवन अपॉर्चुनिटी टू चूज वेदर दे वुड सर्व इंडिया और पाकिस्तान। पार्टीशन के पहले एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, मिलिट्री डिपार्टमेंट, जुडिशरी डिपार्टमेंट में जो भी बड़ी बड़ी पोस्ट पे ऑफिसर्स और वर्कर्स थे, सर्वेंट्स थे, उनको ये ऑप्शन दिया गया कि वो अपनी मर्जी से जो भी कंट्री के साथ रहकर अपना सर्विस देना चाहे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसी बेसिस पे बहुत से लोगों ने पाकिस्तान को सिलेक्ट किया और बहुत से लोगों ने अपने भारत को। They were given assurance about their pay, allowance, security of service and the pensions। उनकी जो भी जॉब थी, जॉब से रिलेटेड उनका सैलरी था, उनको जो एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए जाते थे, जॉब वगैरह छोड़ने के बाद जो पेंशन मिलता था, वो सब एज इट इज़ मिलता रहेगा, उसका अश्योरेंस दिया गया। अ लार्ज नंबर ऑफ द रेफ्यूजी फ्रॉम बोथ द कंट्री माइग्रेटेड, लिविंग देयर हाउसेस एंड प्रॉपर्टी। जैसे ही पार्टीशन हुआ, बंटवारा हुआ, प्रेजेंट पाकिस्तान में जो इंडियंस रहते थे उनको भारत आने के लिए इनविटेशन दिया गया। जो मुस्लिम इंडिया में रहते थे उनको भारत में रहना है तो भारत में रह सकते हैं, और इंडिपेंडेंट पाकिस्तान के साथ जाना है तो इंडिपेंडेंट पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं, ऐसी परमिशन दी गई। और इस वजह से बड़े पैमाने पे दोनों साइड से माइग्रेशन स्टार्ट हुआ, जिसमें लोगों को अपना घर, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी को यूं ही छोड़कर, अपने जहां वो रहते थे उसको छोड़कर या तो पाकिस्तान से इंडिया आना पड़ा या तो इंडिया से पाकिस्तान जाना पड़ा। उन्हीं लोगों को रेफ्यूजीज कहा गया। इंडिया सॉल्व द ट्रिमेंडस प्रॉब्लम ऑफ द रिहेबिलिटेशन एंड रिस्टोरेशन वेरी स्किलफुली एंड पेशेंटली। भारत ने अपनी फर्ज को भली भांति निभाते हुए पाकिस्तान से जो इंडियंस माइग्रेट होकर आए थे, उनके रहने के लिए घर वगैरह के अरेंजमेंट्स, उनके काम के लिए अरेंजमेंट्स, उन्हें एग्रीकल्चरल अपॉर्चुनिटी देने के लिए लैंड, ये सब का बहुत केयरफुली ध्यान रखते हुए वर्क को सेटल किया गया।
Then the Deputy Prime Minister and the Home Minister Sardar Vallabhbhai Patel merged 562 small and big princely state of India into Indian Union. बाद में हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उनको ये ड्यूटी दी गई कि वो इंडिया को एक यूनियन कंट्री के रूप में एस्टेब्लिश करे, और उन्होंने 562 छोटे बड़े जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे उनको डिस्कशन करके, कन्विंस करके, रूल्स एंड रेगुलेशंस का यूज़ करके या मिलिट्री यूज़ करके इंडिपेंडेंट इंडिया के साथ जोड़ दिया, और इंडिया एक यूनाइटेड यूनियन नेशन के रूप में एस्टैब्लिश्ड हुआ. Sardar Vallabhbhai Patel's strong determination, iron will, and diplomatic negotiation solved the problems, और 562 प्रिंसली स्टेट्स को उन्होंने आज़ाद भारत के साथ जोड़ा. Yet long-term planning to find a solution to the problem like effect of communal riots due to partition, shock of the Mahatma Gandhi's death, and to make the independent India self-reliant with the help of good governance, the weak condition of Indian agriculture, to create an atmosphere of a peace and tranquility in the country, and internal external security of the country, etc. became necessary. 562 प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज करने के बाद अब आने वाले फ्यूचर से रिलेटेड एक बहुत बड़ा एम और ऑब्जेक्ट जो आज़ाद भारत के सामने था, वो था लॉन्ग टर्म प्लानिंग. किस चीज़ का? टू सॉल्व द प्रॉब्लम लाइक कम्युनल रियॉर्ड्स, हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में जाति धर्म के नाम पे कोई झगड़े ना हो, उसे सॉल्व करना, महात्मा गांधी जी की डेथ के शौक से देश को बाहर निकालना, इंडिया को एक सेल्फ रिलायंट सेल्फ सफिशिएंट कंट्री बनाना, आज़ाद भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो पूरा वीक कंडीशन में है उसको फिर से डेवलप करना, और पूरे भारत में एक सेफ, सिक्योर्ड एंड पीसफुल एनवायरनमेंट एस्टेब्लिश करना, और इंडिया का जो इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी है, बॉर्डर से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स थे उनको सॉल्व करते हुए देश को प्रोग्रेस की ओर आगे ले जाना, ये बहुत बड़ा चैलेंज था जो उस समय के बड़े दिग्गज नेताओं ने बहुत केयरफुली प्लान करते हुए, डिज़ाइन करते हुए, रेगुलर बेसिस पे सक्सेस को अचीव करते हुए आज का सुनहरा भारत आपको और मुझे बच्चों दिया उन्होंने. सो दिस वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर 5 in which we achieved the independence from the British rule. Till next session, goodbye and take care.